Welcome to today's class on Russia-Ukraine war. And in the previous two classes, हम लोगों ने पढ़ा है about what is the genesis of Russia, how the Slavic or Slavic tribes had um, inhabited, uh, starting from Kiev, which is currently the capital of Ukraine, and then later moving on to Siberia and other parts of Russia. Then we studied about the various kinds of empires that existed. So the Rurik dynasty, or Peter the Great, or Ivan the Great, and Ivan the Terrible, and finally the Romanovs, who were killed. The Nicholas II, the Tsar of Russian Empire, who is also linked with the British royal family, was eventually killed during the Russian Revolution. तो रशिया यूक्रेन वॉर को समझने से पहले let us first see कि map is very important. Map will, if you don't understand the map of it, it will become strategically very difficult for you to understand कि क्या है और क्या हो रहा है. So as you can see, Russia, the former Soviet Union, में क्या क्या आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान. और ये जो लाइटिश पिंक में है, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि गोर्बाचेव, व्हेन ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, ही went ahead with glasnost and perestroika. And I told you the story of how he became a Pizza Hut salesperson and all of it. He was defamed for glasnost and perestroika. He passed away last year recently. So the end of Soviet Union signified couple of things. First, that US was then the superpower. We were living in a unipolar world. The second thing that it signified, that Samuel Huntington ने एक ऐसे लिखा, which was, or book लिखा, which was The Clash of Civilizations, which stated कि आगे के जो wars होने वाले हैं वो culture और religion पे होंगे. It will not be on ideologies. तीसरा चीज है, फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा द एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि दिस इज लाइक द एंड ऑफ हिस्ट्री, एज इफ लाइक इट वाज वेरी रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ द यूएस सक्सेस. बट every scholar and political pundit started reimagining the world of how the world would be. NATO had emerged also as the political military power. Warsaw Pact had ended in itself because of the Prague Springs. तो रशिया जो है अपने टेरिटोरियल नॉस्टैल्जिया से काफी कम लिमिटेड टेरिटरी पे आ गया. Now look at one particular, there are two issues which have not been resolved. There are many, but two major. एक है यूक्रेन रशिया का, और दूसरा आपका, एज यू कैन सी, अर्मेनिया एंड अजरबैजान. अर्मेनिया और अजरबैजान कहाँ है? यहाँ पे, दिस वे, जॉर्जिया के नीचे इस तरफ, टर्की के पास. तो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, आर्मेनिया और अजरबैजान में भी स्पेसिफिकली ये जगह जो नगोर्नो कराबख है, यहाँ पे बहुत बार skirmish होता है, रेगुलर लेवल पे होता है, एंड दे ऑफन गेट इनटू सिविल वॉर्स. एंड because of the ethnic linguistic differences and the border that has been created between the two states, इनके बीच में काफी since 91, there is very regular skirmish, which is not mostly reported by international media at a very high end scale. Lekin this was the first product of conflict which has been as a result of the Soviet and the end of Soviet Union. तो ये जो नगोर्नो काराबाख है, ये काफी सेंसिटिव एरिया है, एंड आर्मेनिया और अजरबैजान का काफी जो दिक्कत है उसमें टर्की कभी इन्वॉल्व हो जाता है, कभी ईरान इन्वॉल्व हो जाता है. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद रीजनल पावर्स भी अपना, दे वांटेड टू टेक पावर. सो देयर वाज सऊदी अरेबिया,
which took power, Iran, then Turkey. Turkey ka always the nostalgia of Ottoman Empire, Iran का Persian Empire. तो ये सारी चीजों का आपका इम्पैक्ट और सारे जो एक्टर्स हैं वो भी दिखने लगा. और कैस्पियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखे होंगे कि बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सारे सीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल गैस. तो बहुत ही ज्यादा आपका इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा था. नाउ लेट्स कम टू यूक्रेन. तो यूक्रेन को अगर बहुत ध्यान से देखोगे, जस्ट लुक एट किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है. यूक्रेन का कैपिटल है कीव. कीव विच वाज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ कीव रूस, जब स्लाविक ट्राइब्स यहाँ पे आके सेटल किए थे. अब आपका बॉर्डर्स क्या है? बेलारूस, इसका कैपिटल है मिन्स्क. बेलारूस 2020 में न्यूज में था क्योंकि वहां प्रोटेस्टर्स को काफी मारा जा रहा था. एंड वहां का जो डिक्टेटर है, ही इज almost like in the western narrative, compared to Putin. Or many of the journalists and many of them protesters were killed, and it was very difficult. कुछ समय तक, एक महीने तक रिपोर्टिंग चली. उसके बाद there was a media blackout about Belarus. But Belarus has been pro-Russia. पोलैंड, पोलैंड की हिस्ट्री रही है कि उसको जर्मनी ने इन्वेड किया था, एंड जर्मनी बिलीव्ड इट टू बी इट्स ओन टेरिटरी. एंड देन पोलैंड के कारण ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. यहाँ पे है मोल्दोवा. मोल्दोवा इज अ स्मॉल पुअर कंट्री, small in terms of territorial size also, and not very essential part of Soviet Union. उस समय भी बहुत ज्यादा नहीं था. यहाँ है रोमानिया, यहाँ है हंगरी. इधर है आपका ब्लैक सी. हियर इज योर सी ऑफ अजोव. आपके यहाँ पे दो सिटीज आपको दिख रही हैं, डोन्स्क एंड लुहान्स्क. दीज आर द टू जो, और रशिया फिर इस साइड है. तो ये ईस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन और रशिया का. और ये जो नीचे आपको ये दिख रहा है, दिस इज क्रीमिया. दिस इज क्रीमिया. तो स्टोरी क्या होती है? स्टोरी बेसिकली यहां से शुरू होती है कि जैसे आप ये देख रहे हैं ना, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मैदान. जस्ट लुक एट इट एंड रिमेंबर इट केयरफुली. सो ये जो मैदान है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल. कहीं भी जो आप बहरीन में देखेंगे, देयर इज अ पर्ल स्क्वायर. इन इजिप्ट देयर इज, इन कायरो तहरीर स्क्वायर. सब जगह जो भी राउंड अबाउट्स होते हैं जहाँ पे लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं, दैट हैज बिकम अ वेरी फेमस सिंबल ऑफ मैदान प्रोटेस्ट. मैदान कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड. तो ये यूक्रेन है. यूक्रेन आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता था, obviously. And what was basically, what um, was the issue that started cropping up? The issue that started cropping up, the first issue was, just look at the size. If you look at the size of Soviet Union, and इसमें आपके ईस्टर्न जर्मनी के, ईस्टर्न यूरोप के सारे स्टेट्स में यूक्रेन was the biggest. I would ask someone to mute themselves. Someone is unmuted. Ukraine was biggest in terms of territory. आपका चेकोस्लोवाकिया टूट जाएगा. Germany will become then a Western Front. Ukraine was the biggest territory for Soviet Union, even at that point of time. तो यूक्रेन का अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट था क्योंकि वहां पे जो कीवियन रूस थे, दे हैड देयर ओन नेशनलिस्ट स्ट्रगल.
ये लिटरेरी कैनन था. लिटरेरी कैनन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इन यूरोप ऑस्ट्रिया is considered to be the musical, architectural and all of it, the haven of all these promising literature, architecture, dramatics, theater, opera. उस तरीके से in Eastern Europe it was Ukraine, and they also had a very very strong memory of their own Slavic identity. अब जो ये रूस शब्द है जो आपको रशिया में दिखता है और बेलारूस में दिखता है, it comes from the Rus tribes जो स्लेविक थे, and they had first of all settled over in Kiev. तो यहाँ के लोगों को जिनको अपना हिस्ट्री पता था, they had a very strong memory कि हमारा अलग है, we were different. मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तो बाद में बना है, पहले हम बने थे. They had this entire idea of their own originality. और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप था आफ्टर रशिया. बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज भी हुआ था. कोल, स्टील, हेलीकॉप्टर इंजन्स, सनफ्लावर सीड्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूक्रेन में होता था. आज के दिन भी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट वाज यूक्रेन. Countries like Egypt have gone into fiscal deficit because Egypt is what, Sahara Desert. तो वो maximum अपना wheat import करते थे, and now they are paying like double the amount in billions for wheat because of the Ukraine-Russia war. Simple things like Black Sea में आपको एक fish मिलती है. McDonald's when they produce the fish burger, McDonald's का हर country में अलग burgers का, wraps का वो मैकडोनलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बर्ड्स ऑफ द पीपल. तो इंडिया में जो फिश का वो लाते थे, इट वाज नॉट रोहू एंड बाकी का, वो लाते थे ब्लैक सी से. तो जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहला फिश मैकडोनल्ड्स का खत्म हुआ, फिश बर्गर. लाइक है ऐसे कैसे हो सकता है, बट हुआ. एनीवे, तो यूक्रेन आपके कोल का, स्टील का, हेलीकॉप्टर इंजन्स का, ग्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर था. बट दैट इज नॉट द व्हाट द पॉलिटिक्स इज हियर. बहुत एजुकेटेड पीपल भी थे यहाँ पे. They knew two languages. One was Ukrainian and the other was Russian. It was very easy. Like if you're watching a television documentary, so the journalist is asking a question in Russian, the other respondent is responding in Ukrainian. जैसे अंग्रेजी हिंदी में हमारा English type से है, तो it was Russo-Ukrainian language जो हर बच्चा यहाँ पे जानता था. Everyone used to speak about it. सोवियत यूनियन को कोलैप्स के बाद 1991 के बाद, now the politics starts here. पॉलिटिक्स क्यों शुरू हुआ? 91 में सोवियत यूनियन कोलैप्स किया. 1994 में यूक्रेन ने एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब कि हम अपने कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट या बढ़ाएंगे नहीं, राइट? सोवियत यूनियन क्या करता था? सोवियत यूनियन का, अगेन लुक एट द मैप, सोवियत यूनियन के जितने भी वेपन्स थे, खासकर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो यूक्रेन में थे, बेलारूस में थे, जॉर्जिया में थे, एंड सम पार्ट ऑफ कजाकिस्तान. तो जब सोवियत यूनियन आपका डिसइंटीग्रेट करता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स बचे हुए हैं, एंड सोवियत यूनियन हैज डिसइंटीग्रेटेड. तो यूक्रेन जो है आपका एक ट्रीटी साइन करता है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, कि हम ये जो वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इनको सरेंडर कर देते हैं, और अदरवाइज इट वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. एंड सारा डिलीवरी सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये सारी चीजें जो हैं वो यूक्रेन के थ्रू ही होती थी इन सोवियत यूनियन. सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोवियत यूनियन. तो ये कर देता है ऐसे. अब दूसरा चीज जो है पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का. तो इफ आई एम टेलिंग यू कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके पास बहुत हैं, तो आर्टिलरी आर्म्स और नेवी और एयरफोर्स तो सोच ही लो कि कितना होगा. दूसरा, there was a politics of language. We as Indians understand the politics of language because 1956 में, और if you go back in history, 1920s में जब कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दे आस्क्ड कि जब आपका इंडिया आजाद हो जाएगा, बन जाएगा, तो आप हमें अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देना. अभी क्या है आपका? अभी आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, लेकिन आप हमें डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज.
1947 के बाद नेहरू गॉट अ बिट सेंसिटिव. ही वाज लाइक रिलीजन के कारण पार्टीशन हो गया, अब हम लैंग्वेज के कारण अगर स्टेट का बॉर्डर बनाएंगे कहीं पार्टीशन ना हो जाए. So he was very apprehensive. So in 1950s India में massive movement, like people are self-immolating themselves, student movements for the construction of states like Tamil Nadu, Andhra, Kerala, Karnataka, ये सब हुआ 1956 में. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी उसने फिर लैंग्वेज के आधार पे आपके साउथ इंडियन स्टेट्स को डिवाइड किया. अदरवाइज देयर वाज अ डिफरेंस, मतलब आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं और आपके चेन्नई प्रेसिडेंसी में भी लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं, एंड पीपल ऑफ कन्नड़ा दे वांटेड देयर ओन टेरिटरी. तो लैंग्वेज एंड टेरिटरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनलिज्म. तो आप ये देखिए कि जो ब्लू में दिख रहा है, दिस इज यूक्रेन, राइट? जो ब्लू में दिख रहा है, दिस पार्ट विच इज मोस्टली ईस्टर्न यूक्रेन एंड क्रिमिया, ये रशियन बोलता है कंप्लीटली. रशिया इज द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन. जो ईस्टर्न सेंटर है, यहाँ पे सोलेडार है एंड अदर्स विच आर कोल माइनिंग और सॉल्ट माइनिंग के लिए, जिप्सम माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका हैवी डोमिनेशन है. और ये जो वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ यूक्रेन है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग यूक्रेनियन ही बोलते हैं. सेंटर एंड वेस्ट में यूक्रेनियन लैंग्वेज का है. बट आपका ईस्टर्न पार्ट आप देखो, द लैंग्वेज पॉलिटिक्स इज रशियन स्पीकिंग. और एथनिसिटी क्या है? स्लेविक आइडेंटिटी. तो दो चीजें इनके मिल गई विथ रशिया, एक लैंग्वेज और दूसरा एथनिसिटी. अब होता क्या है, 1994 में पहला प्रेसिडेंट आता है यूक्रेन का, उसका नाम है लियोनिड क्रापचुक. उसको ऑफिस से निकाल देते हैं. वाई? क्योंकि उसका जो दूसरा कैंडिडेट है लियोनिड कुचमा, वो बोलता है कि हम रशिया के साथ बेहतर रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रशियन लैंग्वेज एथनिसिटी मेंटेन करके रखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ नेबर व्हिच इज एंटी अस. फिर 2004 में उसका हैंड पिक सक्सेसर होता है विक्टर यानुकोविच. उसके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट होता है. तो यूक्रेन हैज अ हिस्ट्री ऑफ करप्ट एलिट्स, मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमेस्टिक ओन पॉलिटिकल सिस्टम. वहां पे सोशल ऑर्डर, सोशल चेंज साथ में नहीं चलता है, और उसको भी प्रोटेस्ट से हटा देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए. उसके बाद जो है मैदान रेवोल्यूशन 2014 में होता है, विच आई विल टेल यू. मैदान मैंने आपको फोटो अभी दिखाया था. उसके बाद फाइनली एक नेशनलिस्ट कैंडिडेट एंड चॉकलेट बिलियनर जिसको बोलते हैं, आपका पेट्रो पोरोशेंको बिकम्स द हेड. उसके बाद ही इज रिप्लेस्ड बाय योर जेलेंस्की. नाउ जेलेंस्की वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मोस्ट लव्ड. उसको 70-80% वोटिंग मार्जिन से जीता है. एंड जब वो आया था इनिशियली एवरीवन वाज लाइक ही इज अ स्टूज ऑफ रशिया, ये पुतिन का स्टूज है एंड एवरीथिंग. बट नेवरदलेस पीपल वोटेड फॉर हिम and he had very mass appeal in the popular culture, and his lineage is Jewish. तो ये प्रो पीस कैंडिडेट 2019 में चुना जाता है. अब हो क्या रहा है, अब ये वाला मैप बहुत ध्यान से देखना. नेटो आपके इस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और टर्की. टर्की का थोड़ा सा अभी डाइसी है, बट यहाँ पे अपना आर्मी, वॉरशिप्स, सबमरीन, टैंक्स नेटो के नाम पे डालना शुरू कर देता है. मतलब 8 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं. हेवी आर्टिलरी 5436, टैंक्स आपके 2500 से ज्यादा हैं, वॉर प्लेन्स हैं almost 1300-1400. These are official figures which have been reported, but you should see the narrative with the eye of suspicion कि इससे ज्यादा भी हो सकता है. तो नेटो ने एक्सपेंशन शुरू किया और नेटो के मेंबर्स हो गए बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, जो पहले वॉर्सो पैक्ट में थे. They left the Warsaw Pact and उसके बाद they became part of NATO. ये बाल्टिक कंट्रीज जो आपके बाल्टिक सी के पास हैं,
becoming parts of NATO was a threat in 2002 to रशिया. उसी समय आपका 2001 में 9/11 हुआ है. 2002 में they are thinking of invading Afghanistan and Iraq, of the entire narrative of weapons of mass destruction and Putin and all. Putin, who was a ex-KGB agent, and the other military machinery of Russia is watching it keenly कि हो क्या रहा है, what is happening. मतलब अब जो बचा हुआ है नेटो का, बस यही आना बचा हुआ है ना, which is Belarus, यूक्रेन, क्रीमिया. इसी साइड तो आना बचा है, बाकी सब जगह तो नेटो है. Now, how to make you understand it? Say for example, पाकिस्तान बोलता है कि I want to be a NATO country, या फिर इंडिया बोलता है कि I want to be a NATO country, और बॉर्डर पे अमेरिकन वॉरप्लेन्स, टैंक्स, आर्टिलरी आ जाते हैं, which are American, European, Polish, whatever, Australian. It can be seen as a threat to sovereignty. So Russia is watching this and Russia is like कि खबरदार अगर बेलारूस और यूक्रेन, मतलब वो पहले ही बोल देता है कि खबरदार अगर they join NATO and if there is even a chance of it, क्योंकि अगर यूक्रेन पे आता है NATO, this area, then there will be a world war. और ये 2002 में ही बोला गया है, right? And they are like कि आप NATO यहाँ पे आएगा, it is controlling the Black Sea, it is controlling the Caspian Sea, it is going to then control Russia का अपना longest railway station है, which is from Moscow, St. Petersburg to the eastern part of Russia, Vladivostok. तो उसको कंट्रोल कर लेगा. And once NATO controls this, then it will be able to control all of it. Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkey तो anyway चाहता ही है कि वो NATO का member बने, NATO नहीं चाहता. तो चीजें बहुत ही नाजुक हो गई थी since 2002. What you're seeing in 2022 is not 2022 is what I'm trying to say. Now what happens is, और ये यूक्रेन का जो नाइपर रिवर है, that is also a very important lifeline, क्योंकि ये कीव को कनेक्ट करता है एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है. अब 2023 में क्या हो रहा है, आपका लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये पूरा रीजन रशिया के अंदर है. इसके ऊपर ये जो लाइटिश येलो में मिलोवे आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के खुद के सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं. कीव पे ये अटैक करना चाहते हैं. कीव जस्ट नीचे है चर्नोबिल के, एज यू कैन सी. रॉकेट farming, ये rocket pounding and everything has started. Crimea is completely in control of Russia. अब क्रीमिया का अलग स्टोरी है. What is the story? उससे पहले let us compare कि यूक्रेन और रशिया का मिलिट्री माइट में क्या अंतर है. यूक्रेन के पास अराउंड 1.5 lakhs मिलिट्री पर्सनल हैं, 735 टैंक्स है, शिप्स हैं 25, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने साइन किया था. उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर 1.6 बिलियन है एवरी ईयर. रशिया के पास आपके 8 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल है, 3,000 से ज्यादा टैंक्स हैं और 219 आपके शिप्स हैं. न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसके पास बहुत ज्यादा है. नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स है, डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स है, मतलब कि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, एक बटन दबाया एंड बूम. And they have tactical nuclear warheads which are 2,000 almost, and it produce like invested on 78 billion in the military infrastructure. तो it is not a symmetrical warfare, it is an asymmetrical warfare. यूक्रेन के पास नहीं है उतना, रशिया के पास है. बट डीन्यूक्लियराइजेशन की बात जो है, जब यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सरेंडर किया था, तो अ वेरी फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हु is a IR theorist and often talks about realism, John Mearsheimer, he said कि अगर यूक्रेन के पास, and he said this in 1993, कि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं होगा तो आगे आने वाले टाइम पे रशिया अग्रेशन करेगा. This was way predicted, or you can say this narrative was created कि ऐसे होने वाला है.
जब यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सरेंडर किया तो उसके बदले में ऑल्सो दे वांटेड समथिंग, तो रशिया, यूके और यूएस ने अग्री किया बुडापेस्ट में, विच इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वो नहीं तबाह करेंगे, दे विल नॉट परमिएट इनसाइड यूक्रेन। तो किस किस ने साइन किया था? रशिया, यूके और यूएस। यूके यूएस तो नेटो के मेंबर्स हैं, दे आर तो रेडी टू सेंड नाउ डिप्लॉय नेटो। तो इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो गया वो बात, if you look at it at that point of time. That is why this cartoon ki making sarcastic look at बुदापेस्ट मेमोरेंडम की, ये सिर्फ कागजी थ्योरी पे था। नाउ जस्ट लुक एट दिस, आपका नेटो अलायंसेस जो हैं बढ़ते गए। आपका नॉर्वे है, बेलारूस ने, पोलैंड, रोमानिया, टर्की, फ्रांस, स्पेन, यूके, आइसलैंड, ये सब। तो रशिया स्टार्टेड लुकिंग एट इट कि अरे तुम बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन कर रहे हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज अ वेस्टर्न नैरेटिव, इंडिया का भी उसमें काफी टाइम रहा है बीइंग अगेंस्ट इट, और हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगे हैं। तो रशिया इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। नेटो 1949 से 2018 में इतना बढ़ गया, जैसे 1949 में जो डार्क ब्लू कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं, दोज वर ओनली पार्ट्स ऑफ नेटो। आइसलैंड की एज सच अपनी आर्मी नहीं है, तो आइसलैंड, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली, स्लोवेनिया, ये सारा 1952 में, ये जो आपका टर्की अप्लाइड फॉर इट, लेकिन उसका डाइसी है सिचुएशन। 1955 टू 90 में और आपका जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ये सब भी पार्ट बन गए। 99 में पोलैंड पार्ट बन गया। 2004 में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, हंगरी पार्ट बन गया। उसके बाद आपका इधर आ गया चेक रिपब्लिक 2019 में। 17 में आपका यहाँ पे नीचे के जाके कजाकिस्तान, बाकी इसके पार्ट बन जाते हैं, और रशिया चुपचाप देख रहा है, उसके पास वॉर्सो पैक्ट अब है नहीं। इंटेंसिफाइड डायलॉग शुरू हो जाता है यहाँ यूक्रेन। एंड 2002 का मेमोरेंडम के खिलाफ रशिया इज लाइक ये क्या हो रहा है। फिर 2008 में रोमानिया के कैपिटल में बुकारेस्ट, जिसको बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज बिटवीन बुडापेस्ट एंड बुकारेस्ट, वैसे देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन बुडापेस्ट, यू शुड लिसन टू इट। तो 2008 के बुकारेस्ट समिट में यूक्रेन और जॉर्जिया कोशिश करते हैं कि वो नेटो को दे पार्ट बने, लेकिन नेटो बोल देता है ओपनली, और नेटो ओपनली बोलता है कि नहीं, हम रशिया को एंटेगनाइज नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम बोलता है कि वन डे यू विल बी पार्ट ऑफ नेटो बट नॉट राइट नाउ। सो अब ना ये साइड ना वो साइड, आपका ये जस्ट लाइक एवरी डिप्लोमेटिक मीटिंग ऐसे चलता है। अब 2014 में अनरेस्ट शुरू हो जाता है। अनरेस्ट क्या होता है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं विक्टर यानुकोविच, वो रिफ्यूज कर देते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी अग्रीमेंट को साइन करने के लिए, एंड वो चूज करते हैं कि हम रशिया का जो यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन है, we will be closer to that, we will not be closer to यूरोपियन यूनियन। कहा जाता है कि यूक्रेन पे बहुत प्रेशर डाला गया था, इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया था। तो इसके कारण जो है आपके बहुत सारा इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है यूक्रेन में कि हटाओ इसको, ही इज अ रशियन स्टूज, और फरवरी 2014 में इनको हटा दिया जाता है। जब आपके पूरे वेस्टर्न और ईस्ट सेंट्रल पार्ट में प्रो यूरोप प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ईस्टर्न पार्ट में प्रो रशिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कंट्री डिवाइड हो गई है। अब देखो यही दिस इज द सेम इमेज व्हिच आई शोड यू, दिस इज द मैदान, एंड दिस इज द 2014 का जो अपराइजिंग हुआ अगेंस्ट यानुकोविच। तो आधी कंट्री प्रो यूरोप है और आधी कंट्री ईस्टर्न पार्ट जो है वो प्रो रशिया है। एंड आई टोल्ड यू कि उनका लैंग्वेज पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमेजेस लाइक दीज वेर बिकमिंग वेरी कॉमन, बिकॉज ये आपका कायरो में भी देखने को मिला, बहरीन में भी था, आपका सीरिया में भी था, ये बिकेम वेरी कॉमन। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जॉर्जिया में भी फैला ये प्रोटेस्ट, और
यूएस बैठ के कलर डिसाइड कर रहा है कि रोज रेवोल्यूशन तो जैस्मिन रेवोल्यूशन तो व्हाइट रेवोल्यूशन, एंड रशिया लाइक क्या कलर क्या डिसाइड कर रहे हो, फिर रेड रेवोल्यूशन बोलोगे, एंटी कम्युनिस्ट। वो उनका खुद का नैरेटिव था। तो 2014 में जब ये रिवॉल्ट शुरू हो जाता है तो रशियन सोल्जर्स जो होते हैं ये यूक्रेनियन टेरिटरी, जो सदर्न टेरिटरी है क्रिमिया, उसको इन अ कू जैसे आप कह सकते हैं कंट्रोल कर लेते हैं, क्रिमियन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, एंड क्रिमिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ रशिया टिल टुडे। मतलब इट्स नॉट having any kind of identity. Crimea was part of Ukraine. पुतिन ने at many Western conferences साफ ये भी बोला है कि यूक्रेन is not a country. यूक्रेन is not a country. It has never been a country. वो अपना और भी देता है, वो बोलता है NATO is just a 4-letter word. We will show you. तो ये सारी चीजें होती हैं। जब ये क्रिमिया को हटा देते हैं यूक्रेन से तो इसके दो पर्टिकुलर सिटीज बनते हैं, एक डोन्स्क और एक लुहांस्क। डोन्स्क और लुहांस्क मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये वाला, ये लुहांस्क है और ये डोन्स्क है। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, दे आर कंप्लीटली रशियन स्पीकिंग लिंग्विस्टिकली, दिस एरिया। और इन दोनों को वो रिपब्लिक गारंटी कर देता है, रशिया बोल देता है कि यू टू आर टू रिपब्लिक कंट्रीज, और डोन्स्क के पीपल का रिपब्लिक बना देता है, लुहांस्क के पीपल का रिपब्लिक बना देता है। उसके एंटेगोनिज्म में क्या होता है कि यूक्रेन के काफी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स आके वहां पे बॉम्बार्डिंग भी करते हैं कि ये तो हमारी ही कंट्री में रशिया का टेरिटरी हो गया। तो वहां के लोगों के खिलाफ भी सिविल वॉर शुरू हो जाता है, एथनिक क्लेंजिंग हो जाता है, जो यूक्रेन में यूक्रेनियंस भी करते हैं। फिर मार्च अप्रैल 2021 में क्या होता है, रशिया अपना मेजर मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर देता है रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे। ये करने का रीजन, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, पुतिन तो किसी से मिलता ही नहीं था, वो सारा उसका एकदम मैचो हॉर्स राइडिंग एंड स्विमिंग वाला फोटोज पुराना है। और बीच में यूएस ने एक नैरेटिव भी शुरू किया था कि उसको कोई ब्रेन इलनेस है और वहां वो सन बाथिंग कर रहा था। एनीवे, तो मार्च एंड अप्रैल 2021 में ये मेजर आपके टू प्रोटेक्ट डोन्स्क एंड लुहांस्क शुरू कर देते हैं कि ये एथनिक क्लिनजिंग बंद हो इस तरीके से। फिर अक्टूबर 21 से फरवरी 2022 में करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं कि नहीं हम ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब दिस इज अ रियलिस्ट वॉर गेम इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बोलते हैं कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दिस, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और वहां बार बार मोसाद और सीआईए निकाल के दिए जा रहा है जीपीएस इमेजेस, ये देखो और बनाया, ये देखो और बनाया, बट पुतिन इज डिक्लेयरिंग कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब आपका सेकेंड बिल्डअप खत्म हो जाता है फरवरी में 2022 के, तो रशिया बोलता है कि यूएस और यूके को और स्पेसिफिकली नेटो को लीगली साइन करके दो कि आप कभी यूक्रेन में नहीं आओगे, साइन करके दो, क्योंकि आप लोग बड़ा जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने साथ यू विल बी अ पार्ट ऑफ अस कर रहे हो। तो और रशिया ने ये भी बोला कि अगर ऐसा करोगे तो हम अग्रेसिव लाइन लेंगे। अग्रेसिव लाइन लेना तो उनका हॉबी है। तो नेटो ने उस समय, मतलब इट वाज लाइक आर या पार कि बाइनरी में आंसर दो, लोगे यूक्रेन को कि नहीं लोगे, ये नहीं कि कभी लेंगे तुमको ना। तो अब नेटो के लिए इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट कि अब क्या करें नहीं करें। यूक्रेन को अभी तुरंत 2022 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक ऐसे लेने का तो कोई आइडिया था नहीं, और ये हम पे प्रेशर डाल रहा है। तो पुतिन जो है, जब उसको आंसर नहीं मिलता है एंड उसको विशी वॉशी आंसर मिलता है, तो पुतिन जो एकदम हिस्टोरिकली माइंडेड है, ही इज लाइक कि ये ऑर्गेनिक यूनिटी है पूरे रशियन एम्पायर का, हमारा स्लेविक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, हमारा लिंग्विस्टिक, हमारा सब चीज सेम है, वी आर सेम। यूक्रेन को जबरदस्ती बनाया गया अलग कंट्री, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, एंड ये पॉलिटिक्स ऑफ इटर्निटी है। पॉलिटिक्स ऑफ इटर्निटी का मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में टिमोथी सिंडर बोलते हैं कि जो काफी नार्सिसिस्टिक या फिर मैकियावेलियन
presidents, prime ministers रहते हैं, they don't look at life in that, or political life in that year way, कि इस साल का ये impact है. They look at it from eternity. कि history, there is no diversification of history into ancient, medieval and modern. तो पुतिन being Putin is like कि मतलब पुतिन तो वो KGB एजेंट था कि जब fall of Berlin Wall हुआ, I was reading one of his biographies, he was very depressed because he believed कि अगर वो वहां जर्मनी में होता तो वो fall of Berlin Wall नहीं होने देता 91 में. मतलब उसका अलग लेवल का है. तो पॉलिटिक्स ऑफ इटर्निटी में ही स्ट्रांगली बिलीव्स, एंड वो बोलते हैं कि नहीं ये पॉलिटिक्स है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इटर्निटी, ये चेंज नहीं होगा. एंड ये जो वेस्टर्न, खासकर ऑस्ट्रिया जो अपना एकदम उछल रहा है इन कंट्रोलिंग ईस्टर्न यूरोप, बहुत ज्यादा अपना मैच कर रहा है, इसको हम ठीक कर देंगे. एंड ऑस्ट्रिया इज द हेड ऑफ ओपेक, जितना भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है. टेक्निकली ओपेक का हेड किसी वेस्ट एशियन कंट्री में होना चाहिए था, लेकिन इट इज इन ऑस्ट्रिया. तो पुतिन अपना शुरू करता है 24 फरवरी 2022 को 5 बजे कीव के टाइम में. पुतिन अनाउंस करता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और डिक्लेयर कर देता है कि अब ये जो डिक्लेयर किया ना वॉर, ये यहाँ पे मैंने ये आपको, इफ यू गो टू विकिपीडिया यू विल सी द लिंक ऑफ इट. द नैरेटिव इज डिफरेंट क्योंकि पुतिन प्लेज विद द वेस्टर्न नैरेटिव. बाय जब जिस चीज को आप वॉर बोल रहे हो, जो वेस्टर्न नैरेटिव वॉर बोल रहा है, इसको पुतिन ने बोला लिबरेशन ऑफ डॉन्स्क एंड लुहांस्क, कि वहां के रशियन स्पीकिंग लिंग्विस्टिक स्लाविक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का एथनिक क्लेंजिंग यूक्रेनियंस कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं. तो वो लिबरेशन का नाम देता है, ये वॉर का नाम देते हैं. जैसे 2003 में यूएस बोलता है कि हम डेमोक्रेसी प्रमोशन कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर रहे हैं, लेकिन था तो वो वॉर ही ना इराक पे. तो टर्मिनोलॉजी का भी ये नैरेटिव होता है. और बम्बार्ड करना कहाँ से शुरू करते हैं? दे स्टार्ट बम्बार्डिंग पहला यहाँ बेलारूस से. बेलारूस तो उनका दोस्त है, डिक्टेटर भाई भाई. तो बेलारूस से, आपका यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया से, लुहांस से और क्रिमिया से. आइडिया क्या है? कीव को कंट्रोल करना. अभी तक कीव नहीं कंट्रोल हुआ है. दे हैव कम ऑलमोस्ट टू दिस एरिया, यहां तक आ चुके हैं एज ऑफ नाउ. तो आप ऐसा देख सकते हैं कि दे आर नॉट एबल टू, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड से नहीं कर सकते क्योंकि वहां नेटो है. ईस्टर्न बॉर्डर के सब जगह से वो यूक्रेन पे अटैक करते हैं और इन्वेजन शुरू होता है. और खार्कीव एक बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, उसको भी लेना चाहते हैं वो. ब्लैक सी, अजोव सी, सब जगह से इनका शुरू हो जाता है. जेलेंस्की जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, कर्फ्यू डिक्लेयर कर देता है. वो सबको बोलता है कि 18 से 60 साल के जितने भी लोग हैं उनको मिलिट्री में कंस्क्रिप्ट होना पड़ेगा, मैंडेटरी है. ऊपर से वो ये भी बोल देता है कि अगर आपको गन्स चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए तो गन ले सकते हो, कि मैन फॉर अ मैन, इफ यू वांट टू हैव अ गन गो बाय. ही गिव्स ए एड्रेस. उसके बाद सोशल मीडिया पे जेलेंस्की इज वेरी एक्टिव, बट एवरी टाइम यू वुड नोटिस, मतलब केयरफुली, यू विल नेवर गेट टू नो कि वो सोशल मीडिया पोस्ट यूक्रेन से पोस्ट हो रहा है. जेलेंस्की आपको दिख रहा है, दैट इज इट. लेकिन वो है कहाँ? इज ही स्टिल इन यूक्रेन? वॉज ही इन यूक्रेन? उसके ऊपर काफी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं वॉगनर ग्रुप की तरफ से, जो वैगनर ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप कहला गया है यूएस के द्वारा अभी एक वीक पहले. रशियन मर्सनरीज का, मर्सनरीज आर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स. जैसे इराक वॉर में ब्लैक वाटर था यूएस का मर्सनरी, जिसको कोई टेररिस्ट नहीं और बोला आज तक. एनीवे, तो रशियन ट्रूप्स एंटर करते हैं यूक्रेन में, बेलारूस से करते हैं, नॉर्थ ईस्ट खार्किव से करते हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क में करते हैं, और जेड उनका मिलिट्री सिंबल होता है. और धीरे धीरे करके ये सारा एरिया लेना, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ऑल ऑफ देम. बेलारूस भी ज्वाइन कर देता है रशिया यूक्रेनियन वॉर को, जो ओपनली कर देता है उसके बाद. एंड ये नैरेटिव्स आपके होते हैं. इसके साथ अब क्या हो रहा है? अब जो है आपका, दे वांट टू कम क्लोजर टू कीव. तो ये वाला जो एरिया है, चकासी, सोल्डार,
सोल्डार जो बहुत ही फेमस है फॉर सॉल्ट माइनिंग एंड फॉर जिप्सम माइनिंग, उसको कंट्रोल कर दिया है। बीबीसी कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करता है तो इट इज कम्प्लीटली वन साइडेड की नेटो के ऑफिशियल्स का रिपोर्ट है या बीबीसी का अपना परसेप्शन है। रशियन टीवी का आरटी वेबसाइट है, वो कंपैरेटिवली अपने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता है। तो दैट इज वन, एटलीस्ट वन डेमोक्रेटिक थिंग विच इज हैपनिंग। और बहुत सारी चीजें, जर्मनी ने बोला था कि जर्मनी मार्शल टैंक्स देगा यूक्रेन को। उसका खुद का हाईटेक टैंक था, लेपर्ड टैंक। उसके ऊपर खूब 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 डिबेट हुआ और फाइनली now Germany is saying कि नहीं नहीं, we will give you our leopard tanks dear in March। मार्च में दे देंगे वो उसको, मतलब दे आर बिलीविंग कि मार्च तक चलेगा। दैट इज वाई, राइट। यूके तैयार है बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, एंड लिथुएनिया ने एज अ रिजल्ट। सो लेट्स गो बैक टू द मैप कि अब क्या हो रहा है। सो लिथुएनिया ने रशिया के साथ टाइज जो है कट कर दिए हैं। रशिया ने एस्टोनिया के जो जो कंट्रीज नहीं साथ दे रही है उन सबके एम्बेसडर को हटा दिया है। और जो डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन यूक्रेन में वो बहुत ही खराब हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। If the civil war will not kill people, it will be the famine that will, the created famine that will kill people. नॉर्थ कोरिया ने अपना, नॉर्थ कोरिया जिसमें अभी 5 दिन का लॉकडाउन चल रहा है प्योंगयांग में, बिकॉज उनका कोई रेस्पिरेटरी वायरस निकला है। इट्स नॉट द नोरो वायरस ऑफ केरला। तो 5 दिन का भी हांगकांग, ये नॉर्थ कोरिया में लॉकडाउन है। तो नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्रेस किया कंसर्न कि यूएस अप्लाई कर रहा है टैंक्स यूक्रेन को, और बोलता है कि नहीं, दिस इज गोइंग टू एस्केलेट, दिस इज गोइंग टू। फिर पोलैंड जो है लेपर्ड टैंक्स जर्मनी से पहले यूक्रेन को देने वाला है। पोलैंड ने ये चीज बोल दी है। उसके बाद जो है एवरी डे देर आर, अभी जो वर्स्ट न्यूज था अबाउट, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था डिफरेंस बिटवीन जॉर्जियन एंड ग्रिगोरियन एंड जूलियन कैलेंडर। तो उनका जो है क्रिसमस बना था आफ्टर 14 days ऑफ 25 दिसंबर। तो वही देयर वाज अ न्यूज की कैसे इन both in Russia and Ukraine they follow the same Orthodox Christianity and they are celebrating Christmas, and the Russian churches are celebrating Christmas but in the bloodshed, which was a very sad news. उसके बाद जो है यूएस जो है एब्राम्स टैंक जो इराक में 2003 में यूज हुआ था वो देने वाला है। इट इज वर्थ 400 million टू यूक्रेन। उसके बाद फिर रशिया जो है अफ्रीका के कुछ कुछ कंट्रीज में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ आपका इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस का रिक्वेस्ट हॉक एंटी क्राफ्ट मिसाइल देने के लिए यूक्रेन को। इस पे जेलेंस्की ने बहुत क्वेश्चन किया था कि मैं जू हूं और इजराइल मुझे ही नहीं मदद कर रहा है। रशियन कमेंटेटर जो है यूरी क्नुतोव, उन्होंने बोला है कि यूक्रेन भी अब मॉस्को पे अटैक करने को तैयार है, बिकॉज नाउ टिल नाउ वी हैव सीन कि कीव कीव कीव, अब कीव जो है मॉस्को पे अटैक करने के लिए तैयार होने वाला है आपके सारे एब्राम और लेपर्ड और मार्शल टैंक के साथ। और स्पेन, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी लेपर्ड टैंक्स प्रोवाइड करेंगी, 5 of these NATO countries to यूक्रेन। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सैड। सोल्डार जो जस्ट लास्ट वीक रशिया ने कैप्चर किया है, यूक्रेन ने ओपनली एडमिट कर दिया कि दे हैव लेफ्ट सोल्डार और वहां दे हैव लॉस्ट इट। उसके बाद जो है एट द सेम टाइम बहुत सारे मिलिट्री फिगर्स जो नहीं पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको पुतिन डिसमिस कर रहा है, जैसे कर्नल मिखाइल तेप्लिंस्की एंड अदर्स। और Russia is going to cut ties of oil and natural gas to Eastern Europe and Western Europe, जिसके कारण it was predicted that winters are going to be very tough in these countries.
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा कितना आता है, लाइक 2000, 3000, 4000 अ मंथ. जस्ट इमेजिन कि आने लगे 14,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000. तो उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन द वेस्टर्न कंट्रीज. A lot of my friends in UK, they have stopped, like they told me that a lot of people have stopped eating 3 times a day just to save cooking gas. People don't use heater. They are burning wood to stay warm during winter. और ये -4 डिग्री सेल्सियस वाला विंटर है. तो ये सारी चीजें आपका शुरू हो गई हैं. इसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आपका पूरा पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, France, UK, US are all going to supply. And in the coming years, Ukraine will suffer from a civil war. And this will continue. This has become like a business model. All these countries sending warplanes and tanks. Ukraine has to pay back when its economy recovers. So there is going to be a civil war. And even if, like, this finishes off, imagine a utopian situation when this finishes off. अगर हर इंसान के पास गन है तो ट्रस्ट डिफिसिट तो आपके कल्चर में आ जाएगा ना. सो द सिविल वॉर विद इन यूक्रेनियंस अगेंस्ट यूक्रेनियंस भी शुरू हो जाएगा, इवन इफ रशिया विड्रॉज. एंड दिस इज गोइंग टू कैरी ऑन. तो अभी रशिया के सपोर्ट में कौन है? रशिया के सपोर्ट में टू अ सर्टेन एक्सटेंट चाइना है, ईरान है, और भी कुछ देश हैं इनडायरेक्टली. और यूक्रेन के सपोर्ट में आपका पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है. सो दिस वाज फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैपेंड इन 2022. दिस हैज had a history, and there is a history of narratives, and it is a business model that is going on right now. A business model of supplying arms, artillery, machinery, creating civil war. The innocence of common person or the lives of common people are not into consideration either by Ukraine or by Russia. Both of the presidents are Machiavellian and narcissistic, and they will go to any extent to conquer each other in the realist frame of IR. It is a tit for tat, eye for an eye discourse that is happening right now.